Hi guys, welcome to my channel English with Swati. Today we will do verb and types of verb. So let us know about the verb. Verb is a word which describes an action, state and possession. Verb जो है वो 3 ways में काम करती है: doing, being and having. Doing verbs, it also known as action verb. एग्जाम्पल से समझते हैं: प्ले, ईट, रीड, स्टडी, वॉश एट्सेट्रा. इसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को डूइंग वर्ब्स बोलते हैं. सेंटेंसेस में देखते हैं: आई ईट द फूड. हेयर ईट इज डूइंग वर्ब. इसमें हम खाना फिजिकली हाथों से खाते हैं, सो इट इज़ ए डूइंग वर्ब. बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड. हेयर प्ले हम खेलते हैं तो फिजिकली खेलते हैं, सो प्ले एंड ईट आर डूइंग वर्ब्स. सेकेंड वे है बीइंग वर्ब्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टेंस वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं: इज, एम, आर, वॉज, वर, बी एट्सेट्रा. जैसे कि हम कहें आई एम ए टीचर. एग्जिस्ट, अभी भी टीचर हैं. सेंटेंसेस में देखते हैं: राहुल इज़ माई फ्रेंड. मैंगोज आर येलो. हेयर, इज एंड आर यूज एज being verbs. Third way is having verbs. It is also known as possession verbs. Example से समझते हैं: has, have, had, having, etc. Sentences में देखते हैं: I have an elephant. He has a big house. Here we use has and have like having verbs. Now the kinds of verb, we can mainly divide the verbs into 6 types: main verb, helping verb, transitive and intransitive verb, finite and non-finite verb, regular and irregular verb, and 6th one is modal verb. Now the first one is main verb. These are the verbs which denote any action in the sentence. They can be changed according to other words of sentences like run, eat, play, read and knock etc. कि वो सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं. वी मे एड डी, ई डी एंड आई एन जी एट द एंड ऑफ सच वर्ब्स. एग्जाम्पल से समझते हैं: बॉयज़ प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड. हेयर इन प्ले वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है. इन सेकेंड सेंटेंस ही रोट ए लेटर. हेयर वी यूज़ राइट, रोट सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस में है, सो टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती हैं. इन्हें मेन वर्ब बोलते हैं. सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब. दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स. इन्हें मेन वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है. दे आर नॉट चेंज्ड while used in the sentences. Is, am, are, was, were, do, does, did, will, shall, has, have, had, etc. are helping verbs. एग्जाम्पल से समझते हैं: He is writing a new story. Here is helping verb. ये मेन वर्ब के साथ, राइटिंग के साथ यूज़ हुई है. इन सेकेंड सेंटेंस: My father did not attend my birthday party. यहाँ did हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुई है अटेंड के साथ. मेन वर्ब अटेंड. डिड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है. नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स. एग्जाम्पल से देखते हैं: He packed the bag. Here the bag is object, so packed is transitive verb. The birds fly in the sky. Here the sky is object and fly is transitive verb. Next, intransitive verb. Verb that does not need object to complete its meaning is called intransitive verb. जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब. सेंटेंसेस एग्जाम्पल से देखते हैं: द गर्ल स्माइल्ड. द सन शाइन्स ब्राइटली. हेयर ब्राइटली इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ब्राइटली इज एन एडवर्ब.
So shines and smile are intransitive verbs. Now try to find the difference between transitive and intransitive verb. See the picture. Here on the left side of mine there is transitive verb and on the right side intransitive verb. In transitive verb example, the girl has plucked a flower. Here flower is an object. So plucked is transitive verb. The girl is so happy. So happy is not an object. So is intransitive verb. My father bought a new car. Here car is an object. So it is transitive verb. The smell of this perfume is so nice. So here so nice is not an object. Is main verb or it is intransitive verb. Our family has shifted in a new house. Here house is an object. So it is transitive verb. This book is mysterious. Mysterious is not an object. So is intransitive verb. तो अब आपको ये डिफरेंस इस पिक्चर से बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वर्ब इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स, सच टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन. पर्सन के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है पर्सन और प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग, नंबर एंड टाइम, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब्स फॉर्म चेंज हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स. एग्जाम्पल से देखते हैं. शी वॉज वेटिंग आउटसाइड ऑफ हर रूम. इन दिस वेट इज फाइनाइट वर्ब, बट हेयर वी यूज अकॉर्डिंग टू द टाइम ing form of this waiting. So it was waiting past continuous tense में यूज हुई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज. इन दिस planted is third form of verb. It is used in past participle form. Now the next is non-finite verb. Such type of verb forms do not change according to the time of an action, the number of people. चाहे नंबर ऑफ पीपल सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे पास्ट टाइम है, चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर, जो वर्ब की फॉर्म्स चेंज नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब. एग्जाम्पल से देखते हैं. आई लाइक टू ईट apple. Here to eat is non-finite verb. It is used always after the main verb, finite verb. Like is here finite verb or it is used after it. In second sentence, they like to paint wall. To paint is here non-finite verb or it is used after liked. और without it, अगर ये वर्ब की फॉर्म फाइनाइट वर्ब की फॉर्म ना हो तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता है. जैसे कि हम कहें दे टू पेंट वॉल, इट इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस. सो ये बहुत ज़रूरी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले हमेशा फाइनाइट वर्ब आती है, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर और वीक वर्ब्स, इन्हें वीक वर्ब भी बोलते हैं. इन रेगुलर वर्ब्स वी मेक द पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल बाय एडिंग डी, ई डी और टी. इनमें हम इनके पीछे डी, ई डी और टी लगा के इनको चेंज कर देते हैं. जैसे बेस फॉर्म है बॉयल. बॉयल पास्ट टेंस में बॉइल्ड और पास्ट पार्टिसिपल बॉइल्ड. एड, एडेड, हेडेड. डाई, डाइड, डाइड. हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड. सो ये सभी क्या होती हैं? वीक वर्ब्स. इन इरेगुलर वर्ब्स, सच टाइप ऑफ वर्ब आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल्स ऑफ बेस फॉर्म. बेस फॉर्म के अंदर जो वोवल्स होते हैं उनको चेंज करके न्यू वर्ब की फॉर्म बनती है, उसे क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स. जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं. गिव, गेव, गिवन. सिंग और पास्ट टेंस में सेंग और पास्ट पार्टिसिपल में संग. Here we change the vowels of the word. Rise, rose, risen. Write, wrote, written. Now the last part of the verb is modal verbs. These are used before main verbs. ये main verbs से पहले use होती हैं. To express permission, suggestion, advice, possibility, ability, request, obligation and so on. इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि परमिशन को, सजेशन को, एडवाइस को,
पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और इन्हीं सभी को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। और इससे स्पीकर की एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि वो किस वे में सेंटेंस को कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई कैन रीड 1 बुक एवरी डे। यहाँ स्पीकर की एबिलिटी दिखाई देती है, सो वी यूज़ कैन हेयर। तो कैन इज मॉडल वर्ब। इन सेकेंड सेंटेंस, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ एडवाइस दी जा रही है, सो वी यूज़ शुड मॉडल वर्ब। नाउ द थर्ड, मे आई ड्रिंक वाटर। यहाँ परमिशन ली जा रही है, मे आई ड्रिंक वाटर। सो कैन, शुड एंड मे आर मॉडल verbs. Now we have completed our topic of verbs. I hope you will understand it. In the last, thanks for watching and eat always healthy food and keep yourself fit and healthy.